اقتصادی سروے پیش کر دیا گیا ہے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ صحافیوں کو اس سے متعلق بریف کر رہے تھے. مالی سال 2023 اور 24 کیسا ہوگا اس کی ذرا روشنی جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں, روشنی ڈالتے ہیں. انجم نثار صاحب سے میں ایک کوشچن کر رہی تھی سر, انڈسٹریز کے اوپر. ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی مطمئن کرنے کی بہرحال کوشش کی ہے, انہوں نے بار بار صحافیوں کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو سال گزرا ہے پی ٹی ایم کا, یہ 10 مہینے 11 مہینے, اس میں انڈسٹریز کی کیا پوزیشن رہی گزشتہ 3 سالوں میں, اور جو ٹارگیٹس ابھی سیٹ کیے ہیں جس حال میں انڈسٹری موجود ہے, کیا اس سے اٹھایا جا سکتا ہے, اور اٹھایا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جو پچھلا جو ایک سسٹم چل رہا تھا دیٹ واز جی ڈی پی گروتھ آ رہی تھی 5% اور 6%, ویئر ایز یہ سال ابھی کلوز تو نہیں ہوا لیکن پروڈکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 0.3% اور مے بی لیس دین دیٹ جی ڈی پی گروتھ ہو. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھا لی ہے, جس میں مارک اپ جو ہے کائبر جو ہے آپ کا کائبور دیٹ از 21%, پھر بینک کے سروس چارجز 3-4-5% وہ چارج کریں گے, تو 25% پہ کاروبار آپ نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ جو اتنے ہائی پروفٹس پہ کیا جا سکتا ہے اور یہ افورڈیبل ہو. پھر ہماری آن ٹاپ آف دیٹ ہماری جو الیکٹریسٹی کی جو پرائس ہے ریجن میں جو ہے 8-9 سینٹ ہے, ہمارے یہاں جو 20-22 سینٹ ہے, تو دیٹس اندر ایک ہرڈل ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور سب سے بڑا جو پرابلم ہوا ہے ہمیں یہ تھا کہ بیفور کائبر بھی ذرا تھوڑا سا ماڈریٹ تھا, لیکن پہلے بھی زیادہ تھا, اگر 13% تھا تو پہلے بھی زیادہ تھا, لیکن اب تو خیر بالکل افورڈیبل نہیں رہا. اور اس کے ساتھ جو ایک اور جو ایک نیگیٹیوٹی ہمارے سسٹم کے ساتھ جو اٹیچ ہو گئی, کیونکہ ہم ڈالر ٹرمز میں جو ہمارے شارٹ آف ڈالرز تھے, اس وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں اس پہ کرب لگے, اور آپ جو ریگولر جو آپ امپورٹ کرتے تھے وہ آپ امپورٹ نہ کر سکے, اور آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 1/3 رہ گئی. تو ان حالات میں وہ پچھلا سال تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہوپ فل نہیں تھا, جو تھا اس کے رزلٹ سب کے سامنے ہیں. پھر انفلیشن 38% ہو گئی, اور اس وقت جو حالات ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل جو ہے ابھی فائنلائز نہیں ہوئی, ہوتی ہے نہیں ہوتی بات کی بات, لیکن آج کے دن تک تو نہیں ہوئی. پھر آپ نے دیکھا روپیہ بہت تیزی سے ڈیویلیو ہوا ہے. وہ پچھلی گورنمنٹ 105 سے 170 پہ لے آئی, یہ 180 پہ لے آئی, اس گورنمنٹ نے 180 سے 310 پہ پہنچا دیا ہے. سو اوپن مارکیٹ میں تو شاید 310 پہ بھی شاید اویلیبل نہ ہو, اور ابھی یہ ڈیویلیوشن کا جو پروسیس ہے یہ کہیں رکا نہیں ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوپ فل تو نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ایک طرف آپ کے ریونیو شارٹ فالز بھی آ رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پر ٹیکس فردر انکریز کر دیا جاتا ہے, اور جو ٹیکس سسٹم سے جو باہر ہیں, ایگریکلچر بھی باہر ہے اور آپ کا جو ہے ریٹیل چین بھی ہے وہ بھی باہر ہے, تو ہم اپنا جو ٹیکس جو بیس ہے اس کو بڑھا نہیں سکے. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں پولیٹیکل, جس سے پولیٹیکل گین ہو, وقتی گین ہو. ہم نے کبھی فیصلے جو ہیں وہ اپنی اکانومی کو مد نظر رکھ کے وہ نہیں کیے, جس وجہ سے آپ کا ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ بھی نہیں بڑھا, اور وہ ایک پرابلم جو ہے آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے, ایگریکلچر کا تعلق ہے, ہر ایریا میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال نیگیٹو گروتھ رہی, اور کچھ را مٹیریل کی وجہ سے بھی اور انفلیشن کی وجہ سے بھی. تو آئی ڈونٹ بلیو کہ گورنمنٹ سے ہمیں کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس بجٹ میں کوئی ریلیف بہت زیادہ دیں گے. مجھے تو یہی نظر آتا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی پر فردر ٹیکس انہانس کر دیا جائے گا, اور کچھ باتیں جو نارمل آئٹمز بھی تھی ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لگژری آئٹمز ہیں. یہ بجٹ تو جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ شاید عوام دوست بجٹ پیش کیا جائے. میں ظاہر ہے کہ شیخ خوانی صاحب آپ کو بھی میں جو ہے وہ گفتگو میں شامل کروں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اب تو یہ بجٹ کنفرم ہو گیا کہ یہ دوست فرینڈلی بجٹ ہونا تو دور کی بات ہے, یہ شاید کوئی ریلیف والا بجٹ ہی نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوپ ہولز موجود ہیں
जो गवर्नमेंट शायद अभी भी इग्नोर कर रही है वो टैक्स की सूरत में है। ज़रा के अहदाफ तो बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है एंड पे तो टैक्स कलेक्शन में भी ज़रा के उस तरह कलेक्ट नहीं हो पाते। और फिर जो आवाम को रिलीफ देने की बात डार साहब भी करते आ रहे हैं कि हम गरीबों का सोचेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रिलीफ देंगे, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, मौजूद है इस कंडीशन में कि जब IMF भी नहीं है हमारे पास और हमने ज़रा के कर्जों की अदायगी भी करनी है और मुल्क भी चलाना है? मेरे ख्याल में तो जो कंडीशंस है और जिस तरीके से चीज़ें लास्ट पूरा साल नज़र आ रहा है, जब हम अपनी करेंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, बेसिकली कोई टारगेट ही नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ कोशिश तो कर रहे हैं, जो हालात भी है इन हालात में ही आपको बजट देना है। और मैं समझता हूँ हालात तो ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान और बड़ा मुश्किल है सभी पाकिस्तानियों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के अलावा जितने भी लोग हैं। तो ये जो हालात है, इस हालात में हमें वो फैसले लेने पड़ेंगे जो हमारे जो बैड डेब्ट्स आ रहे हैं उनको किस तरह खत्म करना है, जो वो इदारे जो लाइबिलिटीज है उनको हम प्राइवेटाइजेशन कर नहीं पा रहे, चीजें कोई डायरेक्शन में नहीं जा रही, इसलिए कि कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे ताकि इस मुल्क को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन इस वक्त चीजें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नजर आ रही है। जो सर्वे भी अभी हम देख रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे, चीजें ऐसी नहीं है जिसमें आपको कहीं रिलीफ मिल सके। रिलीफ भी क्या मिलना है, हमारे पास कुछ नहीं होगा तो रिलीफ भी कहाँ से देंगे। हमारे आज भी नहीं पता कि ये डॉलर कहाँ ठहरेगा। जब डॉलर रुकेगा तो आपको पता चलेगा कि एक्टिविटी कहाँ जाएगी, फिर हमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। लोग डॉलर बाय कर लेते हैं इसलिए कि और कोई काम ही नहीं है, ये चीजें हो रही है। और आपके सारे पैसे जो लोगों के पास है वो 20% बैंकों में जमा कर देंगे, तो कारोबार कैसे होगा? जब पैसे बैंकों में आप जमा करेंगे तो कारोबार भी नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी, लोगों को जॉब क्रिएशन नहीं होगी। जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में है। मैं समझ रहा हूँ बहुत इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। तो ये सारी चीजों को हमें देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चीजें मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो रही, जो एक्सपोर्ट चीजें होनी है उसके इंपोर्ट नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें हमें बड़ा, मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किल हालात कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हुए थे और उन्हें 5 साल या 4 साल में बनना था वो कैसे बनेंगे, हम ये सोचते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, गवर्नमेंट की भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ऐसा नहीं हम कहें उनके पास भी क्या है वो क्या देंगे, उनको कहीं ना कहीं सीरियस मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो इस मुल्क को हम डायरेक्शन में ले जाए, नहीं तो हम बड़े डिफिकल्ट मतलब बिल्कुल। और डायरेक्शन के लिए चूंकि जाहिर है कि शेखवानी साहब, अब हमारी जो डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी कि हमारे टैक्स नेट को बढ़ाने की हमेशा से बात की जाती है, लेकिन जो फिगर सामने आ रहे हैं कि 956 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी हो रही है। अब अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा लूप होल है, इसको गवर्नमेंट जो है वो के ओवरलुक कर जाती है बहुत सारी जगहों पर। तो ये 6 सेक्टर्स के अंदर अगर मैं छोटी सा इसमें मिसाल दे दूं कि रिटेलर सेक्टर या होल सेल की जो मार्केट है वो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एज वी डिस्कसिंग ऑफ रिकॉर्ड, कि 20% वो GDP रेट में जा तो रहा है मगर वो टैक्स 2% पे कर रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर सकती है, या इक्वालिटी की बेसिस पे इन 6 सेक्टर्स को कैसे ओवरकम कर सकती है कि टैक्स आए? देखिए, टैक्स तो कोई भी खुशी से नहीं देता, वैसे ये बात तो पूरी दुनिया में ही है। मगर अगर आपने टैक्स वाकई ही लेना है तो फिर आपको हर तरह की जो आपकी मसलतें हैं उसको आपको एक तरफ रखना होगा। अब ट्रेडर्स पे एक टैक्स लगा था, आपको पता है, बजट में, और वो थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने कहा जी इसको आप वापस लें। तो अगर हुकूमत की रिट ये हो कि वो थोड़े दिनों बाद ही अपने किए हुए इक़दाम को वापस ले, तो फिर तो आगे बात नहीं चल सकती। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हम अपने टैक्स रेट्स कम करें, अगर हम अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को 20 पे लेकर आएँ, और जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि उनसे टैक्स वसूल करें बल्कि उनको थोड़ा पीनलाइज भी करें कि वो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाएं और वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं। और अब पूरी दुनिया में हमने देखा है कि कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स 20% से ज़्यादा नहीं है, जबकि हम अभी तक उसके अंदर और भी अगर हम जैसे डिविडेंड्स को भी डबल पे टैक्स करते हैं, फिर हम सुपर टैक्स भी लगा देते हैं, उसके बाद WWF भी हमारे यहाँ है, फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन टैक्स भी हम, ये सारी चीज़ें जब मिला लेते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में कि कोई आदमी इतने हैवी, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ में जो एनर्जी की कॉस्ट वैसे बहुत हाई है, वो बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जिसको हम हल नहीं कर सके हैं।
दूसरा फिर आप अपने मार्कअप को आप इस वक्त देखें वो कहाँ पे है। इसके बाद हम इंडस्ट्रियलिस्ट से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमें अच्छी ग्रोथ, ये तो हो नहीं सकता है। और उसके मुकाबले में जो बंदा सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे बाहर से माल लेकर या यहाँ पे, वो असल प्रॉफिट जो है जिसमें हम कहते हैं कि आमतौर पे मिडल वाले की जेब में जा रहा है, और उसको हम नेट में लाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तो डिजिटल ऐसे मीन्स आपके पास मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसको उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से आप उसको उसके इवन अब तो सारे मोबाइल भी बायोमेट्रिक से डिजिटल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा तो हो गए। उसको आप वहीं से कैप्चर कर सकते हैं। मगर इसके लिए जो टैक्स अथॉरिटी है हमारी, ख़ास तौर पे वफाकी सतह के ऊपर फेडरल बोर्ड ऑफ, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये फंडामेंटल इस्लाहत नहीं करेंगे हम बहुत मुश्किल में। और दूसरी तरफ हम स्पेस अगर बिजनेसमैन को नहीं देंगे, हमारे यहाँ देखिए सेल टैक्स का रेट जो है वो अब कहाँ पहुँचा हुआ है। ये रेट्स तो उन वेलफेयर स्टेट्स के हैं जो हर अपनी सिटीज़न को फिर फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, फ्री हेल्थ भी दे रहे हैं। वहाँ तो चलिए आप 18% की 25% की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन रेट ऑफ टैक्सेस के साथ कि किस तरह से जो है वो लोग जो हैं वो गुजारा करेंगे। कोई बिजनेसमैन भी ना ये टैक्स रेट्स वो पास ऑन कर सकेगा और ना ही खरीदने वालों में इतनी सख्त है। फिर जाहिर है कि हम मजबूर कर रहे हैं कि लोग डॉक्यूमेंटेशन से बाहर रहें। जो लोग तो नेट में नहीं रहना चाहते उनके लिए फिर बड़ा अच्छा है कि वो कैश इकोनॉमी करते रहें, ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराएं, बिलियंस की ट्रांजैक्शंस करें, सेल। और ऐसा हो भी रहा है, बाय द वे ये हो रहा है मुल्क में। तो इसलिए हमने अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करना है, फिर उसके बाद उसको कंसिस्टेंट भी रहे और एक इन्फोर्समेंट को सही तरीके से लेके। बहुत साल से फेडरेशन से लेकर हर कोई अच्छी तजावीज़ देता है, मगर वो जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल का हम बजट बनाते हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट यही है कि ये जो एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत से लोगों के लिए जाहिर है कि उनकी लाइफ लाइन भी है और उसको हम जारी रखना चाहते हैं। अब दुनिया में मालिक इस तरह चल पाएंगे नहीं। हमने देखा कितना अर्सा हम FATF में रहे, कितना अर्सा हमारे ऊपर पाबंदियाँ रहीं। अब हमें सीखना चाहिए कि हम इस इनफॉर्मल इकॉनमी को ख़त्म करें और इसको डॉक्यूमेंट करें। मगर साथ मेरी यही हमेशा तजवीज़ होती है कि हम अपने रेट्स कम करें और ब्रॉड बेस करें, इससे हम ज़्यादा रेवेन्यू अंजू साहब बिल्कुल ठीक बात जो है डॉक्टर साहब ने फरमाई है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉन्फिडेंस देंगे, सरमायाकारों को कॉन्फिडेंस देंगे, आप बेहतर इस पे रोशनी डाल सकते हैं और टैक्सेस की भरमार नहीं करें। और अगर कर भी रहे हैं तो कम से कम उनको इतना सब्सिडाइज करें चीज़ों को, बिजली आपको सस्ती मिले, आपको गैस सस्ती मिले। ऐसे कौन से वो चंद इक़दामात हैं जो अगर डार साहब ने नहीं किए, अभी तो वैसे नहीं किए उन्होंने, हमारे सामने तो समझ आ रही है, लेकिन ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इलेक्शन जीते या आने वाले जो टेनोर है उसके लिए कुछ बेहतरी करे? क्या ऐसे चंद इक़दामात हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, ख़ास करके जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ऐसी कौन सी चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी फैसले करे, एक तो स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल करके करे, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि पॉलिसीज़ बन जाती हैं फिर बाद में स्टेक होल्डर्स जो उसको ठीक करवाने में 6-6, 8-8 महीने, साल लगा रहते हैं। और बात यह है कि अगर हमने इस ग्लोबल विलेज के अंदर रहना है तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को हमें कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज़ ना तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकेंगे, ना ही आप अपनी गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर सकेंगे। देयर इज़ अ कंपटीशन और आपने कम्पीट करके एफिशिएंसी से, अच्छी सर्विसेज से, अच्छी प्रोडक्ट्स ठीक के ज़रिए ही आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हम ये इसी पॉइंट से जी प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये ज़रूरी है। देखिए, मैं रिसेंटली मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो मैं सार्क का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, तो 2-3 दिन बांग्लादेश में रहने का मौका मिला है। तो जो मैंने देखा कि उनकी एक्सपोर्ट जो आज से 8-10 साल पहले हमसे नीचे थी। आई डू रिमेंबर जरदारी साहब ने जब ये उनका दौर ख़त्म हुआ 2012 में या 13 में, तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो थी $25 बिलियन थी और बांग्लादेश 23 पे था। आज बांग्लादेश ने जो लास्ट ईयर क्लोज़ किया है वो $62 बिलियन पे किया और इस साल वो जो क्लोज़ करेंगे वो $72 बिलियन पे करेंगे। वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी 60% आपका जो टोटल एक्सपोर्ट का 60% शेयर इस टेक्सटाइल, उनकी जो 85% शेयर है रेडीमेड गारमेंट का। तो आइटम तो वो मिलते जुलते ही हैं। भले दुनिया में बहुत सारे एरिया में कॉन्ट्रैक्शन हुई हो, लेकिन उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में हर जगह से अपना शेयर छीना है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कोशिश भी कर रहे थे कि बांग्लादेश में अगर हम इंडस्ट्रीज लगा लें। ये भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन तरीन साहब जो है वो मेरा ख्याल से मीडिया से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि हमें लाइव जाना है तो हम लाइव